یہودیوں کے سلسلے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے خطرناک منصوبے بناتے ہیں، ایسے خطرناک پلان بناتے ہیں، اپنے سارے دجالی فتنوں کو قائم کرنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھوڑتے، ہر چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، یہودی مذہب میں اپنی سگی بیٹی یا بہن کو کسی کو بہکانے کے لیے بھیج دینا وہ عبادت سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ عیب نہیں۔ اگر ان کی بیٹی یا بہن کسی کو بہکانے کا ذریعہ بن جائے تو اس کی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سچی اور پکی یہودی عورت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی ساری نیچ قسم کی حرکتیں کر کے بھی وہ پوری دنیا سے لوگوں کے عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بار بار یہودیوں کے رد میں باتیں آتی کیوں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہودیت اب ہے نہیں، نام میں استعمال کر رہا ہوں یہودی، ورنہ پہلے ایک مذہب تھا یہودی جس میں حق ایمان والے علماء بھی تھے، ایمان والے لوگ بھی تھے۔ یہودی مذہب بھی ایک زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور بھی کئی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں، ان کے زمانے میں یہ حق پر قائم تھے، ایک خدا کی عبادت، رسولوں کو ماننا، شریعت پر عمل۔ لیکن بعد میں چلتے چلتے اب یہ یہودی بھی نہیں رہے، نام صرف ان کو پہچاننے کے لیے میں بتاتا ہوں یہودی، ورنہ اب کے دور میں جو جیوز کہلاتے ہیں یہودی، یہ یہودی نہیں، بلکہ ان کا کوئی خدا نہیں، ان کا کوئی نبی نہیں، سوائے شیطان کی عبادت کے وہ کچھ نہیں کرتے۔ ان کو عربی میں عبدۃ الشیاطین کہا جاتا ہے، یعنی یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ہر ملک میں ایک سینٹر قائم کیا ہے۔ سال میں جون کے آخر مہینے کے آخر میں ان کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے، ایک اجتماع ہوتا ہے، اس میں بڑے بڑے سیلیبریٹی آتے ہیں اور ہر وہ گندا کام اس محفل میں کیا جاتا ہے جس سے شیطان راضی ہو، خواہ وہ جان دے کر کے بلی چڑھانے کے معاملات ہوں یا گندی حرکتیں کروانی ہوں، لواطت ہو، زنا ہو، سحاق ہو، ہر طرح کی گندی قسمیں وہاں کروائی جاتی ہیں۔ بدلے میں شیطان سے یہ مانگا جاتا ہے کہ ہمیں دنیا کی حکومت دے جائے۔ تو ابلیس لعین دنیا کے تخت و تاج پر بٹھانے کے لیے ان کو بھرپور کوشش کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے شیطان۔ یہ آج کی بات نہیں، تقریباً 4000 سال پرانی یہ روایتیں ان کی رہی ہیں۔ جو بھی حق کی دعوت دینے آئے تو ابلیس لعین سال کے اخیر میں اپنے پجاریوں سے یہ کہتا ہے کہ فلاں کا قتل کر دو، ورنہ وہ قوم میں میرے خلاف زہر اگل رہا ہے اور ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کی بھیڑ جمع کر رہا ہے، یا تو اس کا ایمان خراب کرو یا اسے جان سے مار دو۔ تو یہ ابلیس لعین سے یہ میٹنگ میں سب طے کر کے آتے ہیں۔ پھر حقانیت کی دعوت دینے والے، خواہ وہ علماء صالحین ہو یا مشائخ اعظام ہو، ان کو یا تو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں انہوں نے یہی کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کی تاثیر ایسی تھی کہ یہ جہاں جائیں لوگ ان پر ایمان لائے، اور ہاتھ کا کمال یہ تھا کہ وہ مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کو صرف ہاتھ سے بنا کر پھونک مارتے تو وہ زندہ اڑنے لگتا۔ بیماروں کو آپ شفا اس طرح سے دلایا کرتے کہ روایت میں تفسیر میں کہ دن میں 50,000 اندھوں کو صحیح کرتے، 50,000 بیمار دن میں صحیح ہوتے تھے۔ کوڑ کے بیمار، برس کے بیمار، سفید داغ والے، دن میں 50,000 لوگ جس سے صحت یاب ہو رہے ہوں، کیا وہ اس پر ایمان نہیں لائے؟ یہ چیز ابلیس لعین کو کب گوارا ہو؟ تو اس نے اپنے پجاریوں کو، جو یہودی ہیں، ہر زمانے میں شیطان سے ان کا ایک کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے ابلیس لعین سے کہ ہم تیری رضا کا ہر کام کر ڈالیں گے، بدلے میں تو ہمیں دنیا کی حکومت اور دولت دلائے۔ آج کئی لوگوں کو مشہور کرنے کے لیے الومیناتی کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں کئی مرتبہ اس کو استعمال کر چکا ہوں۔ یہ عبدۃ الشیاطین ہے، یہ شیطان کے پجاری ہیں، ان کا کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی دین نہیں، صرف ابلیس لعین، اس کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں، الومیناتی۔ ان سے جو جڑ جائے اس سے سب سے پہلے چیز اس کی ساری ایمانیت ختم کرنی پڑتی ہے کہ تو کسی بھی مذہب کا نہ رہے، کوئی ایک چیز پر تیرا عقیدہ نہیں ہونی چاہیے، بدلے میں ہم تجھے پاپولر کر کے دکھائیں گے۔ کئی ایسے سیلیبریٹی ہیں، ٹاپ قسم کے سٹار مانے جانے والے لوگ،
अक्सर का ताल्लुक इल्यूमिनाती से है। ये जब जा करके अपना ईमान, दीन, अकीदा सब बेचते हैं और फिर उनके हाथ में हाथ रखकर ये अहद करके आते हैं, तब इन्हें ये सब पब्लिसिटी मिलती है। फिर इन सेलिब्रिटी को वो इल्यूमिनाती इस्तेमाल करते हैं। तू फटा हुआ शर्ट पहन, फटी हुई पैंट पहन, ताकि तुझे देखकर लोग सारे यही करने लग जाएं। चंद लोगों को खरीदा जाता है अपने काज के लिए और पूरी दुनिया के अमाल बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। इस सारों का ताल्लुक इब्लीस लाइन से। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इन्होंने मंसूबा बना लिया और घर का घेराव भी कर लिया, बड़े मंसूबे बनाए, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत उठा लिया। हम मोमिनों का अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा हैं और वो कयामत के करीब फिर आएंगे। नबी की हैसियत से नहीं बल्कि उम्मती की हैसियत से आएंगे, कि कोई ये ना कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, सबसे आखिरी नबी हैं, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कैसे वो खातमुन नबीयीन होंगे? जालिमो, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे मगर नबी बन करके नहीं, धोखा खा गए। वो उम्मती की हैसियत से आएंगे, ये भी हदीस पाक में है। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक निकाह करेंगे, अपनी जिंदगी पूरी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजारेंगे, तो फिर हुजूर के बाद आने वाले नबी का सवाल ही नहीं होता। खैर, ईसा अलैहिस्सलाम को रब ताला ने उठा लिया। अब क्या हुआ आगे रब ताला ने जो अंजाम के तौर पर बयान फरमाया वो मैं बताता हूं। अब इन सब चीजों से हमारी जिंदगी का ताल्लुक बताऊं। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मैं जाने से कबल इसी आयत पर गुफ्तगू कर रहा था, चंद चीजें मैं इसकी बयान करके गया, फिर आज बयान करूं। इस आयत से हमारी जिंदगी का गहरा ताल्लुक है। रब ताला फरमाता है इन्होंने मकर किया। मकर किसको कहते हैं? खुफिया प्लान बनाने को, धोखा देने को, इसी को तो मकर कहते हैं। मक्कारी कर रहा है, यानी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। सामने नजर आता है कि यह हमारा बहुत ही अकीदतमंद आदमी है, लेकिन इसकी आस्तीन में छुरा है, ये कभी भी मार सकता है, कभी भी कत्ल कर सकता। इनको कहते हैं मकर करने वाला। और रब ताला फरमाता वह मकरू, यहूदियों ने मकर किया, धोखा किया। वाकया भी मैंने सुना दिया था आपको। कैसे? ईसा अलैहिस्सलाम को ये लोग डायरेक्ट मारने नहीं आए। फिस्तानूस नाम का एक शख्स जो ईसा अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठा होता और ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्दों के साथ बैठता था और सीखता भी था, लेकिन मुनाफिक था। इधर की बातें यहूदियों को जाके बता देता था। ईसा ने आज ये कहा, वो कहा, तो दिल के अंदर दुश्मनी थी। ईसा अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठता था, उसी को उन्होंने इस्तेमाल किया कि तू सबसे अच्छा आदमी है ईसा को मारने के लिए। उस शख्स को इन्होंने पैसों की लालच दी, वो तैयार भी हुआ और शागिर्द बन करके गया। लेकिन उसके आने से पहले ही ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्दों को सब बता चुके थे कि अभी मेरे ये आखिरी वक्त है, मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। लोगों ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया और कातिल अंदर आने वाला है। अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते तो कैसे बताते हैं? ये भी तफसीर में है। आपने सब बता दिया और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैठे थे, वो अंदर आया मुनाफिक। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मुनाफिक ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला बनकर के आया, चाहने वाला बनकर के आया, यहूदियों की तरफ से आया। हैरत की बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया और इस मुनाफिक को ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दिया। पूरी भी शक्ल नहीं दिया, आधी शक्ल दिया। बहुत देर तक जब ये बाहर नहीं आया तो उसके जो दोस्त बाहर खड़े थे यहूदी, जिन्होंने इसे पैसा दे के भेजा था, अंदर घुसा है। कहा वो पता नहीं कहां गया हमारा सुपारी लेने वाला, गायब हो गया पैसे लेकर के। ईसा को मारा भी नहीं होगा, चलो हम ही मार देते। अंदर घुसे तो इसको पाया। पहली नजर में तो इसको ईसा अलैहिस्सलाम ही उन लोगों ने समझा। अब क्या किया? सबों ने छुरा निकाला और इसी को मारना शुरू किया, जख्मी किया और उसके बाद उठा करके लाए उसको। वो बहुत चिल्लाता रहा, मैं ईसा नहीं हूं, मैं ईसा नहीं हूं। कौन सुने, कौन सुनेगा? क्योंकि शक्ल तो ईसा अलैहिस्सलाम की है।
जोश में यहूदियों ने पकड़ करके उसको सूली पे चढ़ाया और फांसी भी दे दी, मर गया। मरने के बाद उनको टेंशन हुआ कि ये जो बोल रहा था मैं ईसा नहीं हूं, ईसा नहीं हूं, सोचना चाहिए हमारा आदमी अगर ये है तो ईसा कहां है, अगर ये ईसा है तो हमारा आदमी कहां गया। इस टेंशन में तो उनके 500 साल गुजर गए, उनको पता ही नहीं था कि हमने किसको मारा। कुरान ने बताया कि जिसको तुमने मारा है वो कोई और था, ईसा तो अब भी रब के पास मौजूद है। कुरान ने इसकी वजाहत फरमाई। अब रब ताला फरमाता है वमकरू वमकर अल्लाह। अब सुनो आयत, इन्होंने धोखा देने की कोशिश की, मकर किया, प्लानिंग की, शागिर्द बनकर क्या है, मोहब्बत करने वाले बनकर क्या है। वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर का लफ्ज अल्लाह ने अपने लिए भी इस्तेमाल फरमाया, हालांकि रब ताला के लिए ये लफ्ज हम आमतौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्होंने मकर किया और अल्लाह ने भी मकर किया, नहीं, मकर का लफ्ज रब ताला के लिए नहीं। यहां रब ने यह लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई। आला हज़रत ने इसका तर्जुमा यही फरमाया, इन्होंने धोखा देने की कोशिश की और अल्लाह ने खुफिया तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। कैसी तदबीर फरमाया, जिससे तुम बच ही नहीं पाए, तुम बच ही नहीं पाए। सोचा था कि मैं शागिर्द बन करके जाऊंगा, मार करके आऊंगा, और अल्लाह ने उसके जाल में उसको ऐसा फांस दिया कि शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की दे दी। हजार वो दुहाई देता रहा लेकिन बच नहीं पाया। मरा किससे? दुश्मनों से नहीं, जिनके पास जाकर लगाया बुझाया करता था उन्हीं लोगों ने मारा। यह है खैरुल माकिरीन। मौला ताला जब किसी को खत्म करना चाहता है तो उसके खुद के मसलों में उसे उलझा देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आज के दौर में भी मैं इसको बता दूं, लोग आज हर तरह से साजिशें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बना करके रखे। कुछ लोग तो डरा डरा करके हमारी कौम को कमजोर कर चुके, डरा करके अरे तुम्हारा क्या होने वाला है, कटने वाले हो, मरने वाले हो। याद रखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। लोग अपने मुंह से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह का चिराग क्या है? इस्लाम। कुरान इसको अल्लाह का चिराग कह रहा है, इसको मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह अपने चिराग को हमेशा बाकी रखेगा। हजारों आंधियां आई, हजारों तूफान आए, अरे ततारी, चंगेज खान जैसे, हलाकू जैसे जुल्म इस्लाम पर हुए, मगर इस्लाम दबा नहीं। और आज अगर कोई हल्की फुल्की सियासत को लेकर, वो भी 5 साल की कुर्सी को लेकर, ये सोचे कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए, यहाँ की मस्जिदें मिटा दी जाए, इनके शायर को खत्म कर दिया जाए, अजानें बंद हो जाए, देखना वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम मकर कर रहे हो रब ताला के दीन को खत्म करने की, मेरा रब ऐसी खुफिया तदबीर करेगा कि तुम खुद आपस में लड़ करके मर जाओगे। और ऐसे अल्लाह ने बहुत सारे मंसूबे बनाए, बहुत सारे, कई कौमें ऐसी आई जो नबियों के खिलाफ लड़ने के लिए मुत्तहिद हुई, मगर अल्लाह उनके दिलों में ऐसी फूट डालता है कि वो आपस में एक दूसरे को मिलना गवारा नहीं करते। उम्मीद रखो रब ताला से, इसकी इब्तिदा तो हम अपनी जिंदगी में देख ही रहे हैं। अल्लाह ताला कुफ्फार और मुशरिकीन को एक जगह जमा नहीं करता, इनके दिलों में फूट डालेगा और इनके आपस की लड़ाई में ये खत्म हो जाएंगे। इस्लाम को खत्म करने वाले खत्म हो गए, जिसके मुतालिक आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस्लाम को मिटाने का मतलब है मोहम्मद अरबी को मिटाना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को मिटाना। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह, तू किसी के घटाए से न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। हर जमाने में ये देखने को मिला है। यूरोप का एक वाकया ऐसा कि लोग कुरान पर पाबंदियां लगा रहे थे, हर जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के कार्टून बनाए जा रहे थे। डेनमार्क का वाकया आपको मालूम होगा। उसी जमाने में ईसाइयों के एक चर्च का बड़ा पॉप इस्लाम कबूल करता है और मिस्र के दौरे पर वो आता है। उससे उलमाए अजहर ने पूछा, बड़े बड़े उलमा ने कहा, बरसों हो गए थे, कभी मैं इस्लाम के मुतालिक ऐसी चीजें जानने का ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि अपने मजहब में मशगूल था। लेकिन पूरी दुनिया में न्यूज देखता गया, कुरान के बारे में,
इसको पाबंदी लगाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को, तो सोचा कि कुछ तो होगा इसमें। देखा जाए जब पढ़ने की इब्तिदा मैंने की तो अब तक मुझे जो सुरूर नहीं मिला था वो कुरान में मिलने लगा। रब्बे जुल जलाल कभी कभार हम लोगों के ऊपर जालिमों को मुसल्लत करता है, तो भी इसलिए कि और जो कुफार और मुशरिकीन हैं वो देख ले कि आखिर क्यों मुसलमानों को मारा जा रहा है। जिस वक्त वो पढ़ाई शुरू करेंगे कि ये मोहम्मद अरबी की गुलामी करते हैं इसलिए मारा जा रहा है, तो जिस दिन ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ेंगे, यकीन और विजदान कहता है अल्लाह उन्हें भी इस्लाम से हिदायत नसीब फरमाएगा। दौलत इस्लाम, दौलत ईमान उन्हें भी नसीब होगी। तो खौफ की जिंदगी से निकलो और मुस्बत जिंदगी, पॉजिटिव जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इन कुफार और मुशरिकीन के साथ खुफिया तदबीर करेगा और उसका हमें इंतजार है। लेकिन मौला अगर हमारे अमाल से नाराज है तो हमें चाहिए कि अपने मौला को मना लें। ऐ रब्बल आलमीन, ये आजमाइश की घड़ी लंबी ना हो जाए कि हमारी सांसें बंद हो जाए और फिर हम देख ना सके। इलाहुल आलमीन इतना फरमा कि हमारी ताहयात जिंदगी में इन कुफार और मुशरिकीन को जो इस्लाम और बानिया इस्लाम के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं इनको तबाह बर्बाद होते हुए आंखें देखें, ताकि इस्लाम की हक्कानियत मौत तक हमारे सीने में रच बस जाए।